ہے یہ بھی قریب میں پہنچ جائیں گے، اس بارش سے انہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز حضور تاج الفقہا۔ یہ تو بات آ گئی برسبیل تذکرہ۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اس لیے ہم ان کے ہاں جاتے ہیں اور اپنی عرضی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور ہماری بات جلدی قبول ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا کیا ہے، وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کہاں سے آ رہی ہے، یہ نظریہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً مجھ سے کہتا ہے کہ اگر خواجہ صاحب نیک ہیں تو ہم بھی تو نیک ہیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ نبی سے بھی برابری کرنے والے پیدا ہوئے، ولی سے بھی برابری کرنے والے پیدا ہوئے، اور جس کو استنجا کرنے کا شعور نہیں وہ اپنے آپ کو خواجہ کے برابر کہہ رہا ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ تحریک کون سی ہے جو ہمارے نوجوانوں کو نبیوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر کے ان کی برابری کا ذہن دے رہی ہے؟ یہ تحریک کہاں سے چل رہی ہے جو اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کے برابر نوجوانوں کو ذہن دے رہی ہے؟ ایسے تم بھی ہو، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلسطین جل رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، یہ جلا کون رہا ہے، کٹا کون رہا ہے، لوگوں کو مروا کون رہا ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے فلسطین کو تو معلوم ہوگا۔ میں بہت ہی صفائی سے چند جملوں میں اپنی بات عرض کر دیتا ہوں۔ سب تباہی کی ذمہ داری آل سعود کے سر جاتی ہے جسے وہابیت کہا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پوری تاریخ کہہ رہی ہے۔ اٹھا کر کے نیٹ پر جا کر کے آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان میں نرسمہا راؤ کے زمانے سے پہلے اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اسرائیلی ایمبیسی نہیں کھلی تھی۔ سن 1948 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان تھے، آل سعود برطانیہ کا ایک وفد ہندوستان آیا اور کہا کہ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیا جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے، اسرائیل کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے ملک نہیں تسلیم کر سکتے۔ آپ ہمارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں، رہیے، مگر ہم اس پر ہم معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین عربوں کا ہے، اسرائیل اور یہودیوں کا وہاں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہاں ہندوستان سے وہ ڈیلیگیٹ، وہ وفد واپس چلا گیا، مگر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیا۔ کیا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا؟ کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ نمازی تھا؟ نہیں، مگر اس مسئلے میں اس نے انصاف دکھائی اور کہا کہ فلسطین عربوں کا ہے، یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ مگر یہی ڈیلیگیٹ برطانیہ کا یہی وفد جب آل سعود کے پاس سعودیہ گیا، تحریر موجود ہے، نیٹ پر سارے میٹرز موجود ہیں، آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ آل سعود نے لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے، ہم صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آج جو وہاں پہ حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی، نوجوانوں کے ذہنوں کو برباد کر کے ان کو ولیوں کے برابر رہنے کا ذہن کون سی تحریک دے رہی ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مجھ سے اس نوجوان نے کہا کیوں جاتے ہیں؟ جب میں نے یہ جملہ کہا اس نے کہا نیک تو ہم بھی ہیں، تو اگر نیک ہونے کی بنیاد پر وہاں جایا جاتا ہے تو ہم کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟
वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा आपने इल्म दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्म दीन तो नहीं हासिल किया हूँ, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर खा मर्द हो खा औरत हो इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। तो आपने पहला फर्ज छोड़ा। जो तारिके फर्ज हो वो फासिके मोलिन होता है, वो भला नेक कहाँ हो सकता है? आप तो बुनियाद ही अपनी ढाके बैठे हो। कैसे ख्वाजा से मुकाबले का आपने तसव्वुर कर लिया? आप फोन रखिए, आइए कभी तब मैं आपका दिमाग सही कर दूंगा। आपने कहा है कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा है, दीन की कोई तालीम नहीं है। जो दीनी तालीम ना हासिल करे वो फर्ज का तारिक है। जो फर्ज का तारिक है वो नेक कैसे हो सकता है? उसको तो नेकी के रास्ते पर चलने का शोर भी नहीं आ सकता। हजरात, बातें बहुत है कहने को, और अगर कही जाएं तो वो शेर बिल्कुल सुनाना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जुब्बा व साफा पे कुरान व हदीस लेकर अकीदे तौहीद को तौहीद के नाम पर बर्बाद करने के लिए अंदरूनी तहरीक भी है, बैरूनी तहरीक भी है। और फिर अकीदे रिसालत की तरफ चलिए तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस अकीदे को बर्बाद करने के लिए तो हिंदुस्तान में तहरीक जितनी ज़ोर से चली थी, अगर इमाम अहमद रज़ा हिंदुस्तान में न पैदा हुआ होता तो इस तहरीक ने गांव के गांव को रसूल का गुस्ताख बना दिया होता। मैंने एक मौके पर चंद उलमा के दरमियान ये बात रखी, क्या वजह है? हिंद के अलावा दूसरे ममालिक में भी बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीराने तरीक़त थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, मगर वहाँ पूरा का पूरा मुल्क, पूरी की पूरी आबादी, पूरा का पूरा शहर बदअकीदा हो गया। मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सका। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अहले सुन्नत के नाम पर ख्वाजा के दरबार में देखो तो जम्मे गफीर दिखाई देता है। इमाम अहमद रजा की तुरबत पर जाइए तो लाखों की भीड़ नजर आती है। सैयदना सालार मसूद काजी के यहाँ जाइए, महबूब इलाही के यहाँ जाइए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ जाइए, हजरत मखदूम पाक के यहाँ जाइए। रोकने वाले रोक रहे हैं मगर रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि वो बबागे दोहल कहते हैं कि तुम लाख रोको मगर याद रखो तुम जल जाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, मगर हमारा जाना महबूबों के दयार में बंद नहीं कर सकते हो। आखिर ये माहौल कैसे बाकी है? मैंने ये सवाल किया कि और भी तो मुल्क में उलमा थे, दूसरे ममालिक में बड़े बड़े मशाइख थे, आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। मैंने उनसे कहा क्या वजह है? हजार तहरीकें चलाई गई, कोशिश की गई, अंदर और बाहर से न जाने कितने पैतड़े बदले गए, मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सुन्नियत आज भी टनाटन बोलती नजर आती है, अक्सरियत में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? तो किसी ने कहा ये वजह हो सकती है, किसी ने कहा ये वजह हो सकती है। उसमें एक दीदावर आलिम बैठे हुए थे, तजर्बेकार थे, उन्होंने फरमाया कि सुनिए बात यह है और मुल्कों में आलिम थे मगर वहां कोई अहमद रजा नहीं था। हिंदुस्तान में अहमद रजा था, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हो गई। इसीलिए दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ला। और जब उसने तहफ़्फ़ुज़े अज़मत रिसालत की तहरीक चलाई, तहफ़्फ़ुज़े अज़मत सहाबा, तहफ़्फ़ुज़े अज़मत अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़े उलमाए दीन की तहरीक चलाई, तो उसका नतीजा क्या हुआ? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि मुखालिफिन सर पटक पटक करके मर गए, मरते भी जा रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा का हाल क्या है? सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोता है आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बात आ गई। हमारे बलियावी साहब भी बैठे हैं, बात की तायद हो जाएगी। बात में बातें निकलती जा रही हैं। मुझे अभी सुबह क्लास में जमदा शाही पहुंचना है। मुझसे आप झारखंड जो एक अजीम इदारा अपने अंदर रखता है जिसे फैजुल उलूम कहा जाता है, जो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत व रिजवान की अजीम यादगार है, उसके मनसबे शेखुल हदीस पर फाइज होने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब मिसबाही है। उन्होंने मुझसे खुद बयान किया कि बरेली से क्या अकीदत थी अल्लामा अरशदुल कादरी की, उसे जरा सुन लीजिए। मैंने कहा सुनाइए। दास्ताने मोहब्बत है, उसे तो हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, बहुत ही शौक से हम दास्ताने इसको वफा को सुनते हैं। कहा एक मौके पर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान ने दावत दी खानवादे रज़विया के चश्मो चराग हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान को, और फिर वो जलसे में जलवा फरमा हुए। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे और वहां से आ रहे थे। फोन करके मुझसे फरमाया कि आपने क़यामगाह उलमा की कहां कहां रखी है। मैंने तफसील बता दी और उसके बाद में उन्होंने खास कर नाम लेकर के पूछा अल्लामा सिब्तैन रजा की क़यामगाह कहां है। अल्लामा आबिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपके कमरे में, जो इदारे में आपका कमरा जहां आप पढ़ाते हैं बैठते हैं, वहां मैंने उनकी क़यामगाह रखी है। कहा नहीं, जहां मेरे बच्चे रहते हैं, जहां मेरी फैमिली रहती है, वहां जो मेरा मखसूस हुजरा है उसको सजा दिया जाए, वहां बिस्तर लगा दिया जाए और अल्लामा सिब्तैन रजा को वहां पर क़याम कराया जाए। उनकी क़यामगाह मेरा वो हुजरा रहेगी। कहा अच्छा, कहा ठीक है, लेकिन हजरत सब इंतजाम हो गया है। कहा ठीक है, लेकिन उनकी क़यामगाह तो मेरा वो कमरा होगा जहां मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं। और फिर क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, रईसुल कलम फरमाते हैं, मौलाना सुनो, आला हजरत के खानवादे पर रसूल पाक की खुसूसी इनायत है। मैं ये चाहता हूं कि अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो रसूल पाक की खुसूसी इनायत बरेली के वास्ते से मेरे घर में भी आ जाए। जब मोहब्बतों का चिराग दिल में यूं जलता है तो वो सफीर इस्लाम बनकर कायनात के उफुक पर छा करके रईसुल कलम कहलाता है, हाफिज मिल्लत की यादगार कहलाता है। अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए जब हिंदुस्तान में तहरीक चलाई गई, इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर ऐसा वार किया है और दुश्मनाने इस्लाम की जबान को इस तरह से काटा है कि आज तक वो बिलबिला रहे हैं और आज तक इमाम अहमद रजा को न जाने किन किन अल्फाज से याद कर रहे हैं, मगर इमाम अहमद रजा की अजमत का सिक्का जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। आप कहेंगे कि मौलाना ये कौन सी तहरीक थी, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि नाम लेकर के अपनी जबान को मैं खराब नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खिंजीर का नाम ले लिया जाए तो जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। हालांकि ये मसला सही नहीं है, ये मसला गलत है, लेकिन लोगों में मशहूर है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका नाम लेना मैं अपने तय बहुत ही गलत समझता हूं। मगर एक तहरीक थी उस जमाने में जो रसूल पाक के एक एक वज्ह का इनकार करने के लिए गांव गांव घूम रही थी। रसूल पाक ने फरमाया कि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, मगर लोगों के जहन में एक तहरीक ये बात बैठा रही थी कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, अब वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जो ही बरेली के इमाम अहमद रजा ने इन गुस्ताखाना जुमलों को सुना, वहीं से ललकार करके कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब उस तहरीक के एक फर्द ने लिखा था कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने ललकार कर फरमाया था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और जब वो तहरीक कहती थी कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, तो ऐसे मौके पर इमाम अहमद रजा हमें सबक दे रहा था। सबसे औला व आला
हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जब वो तहरीक कह रही थी कि बस उनको बड़े भाई की तरह मानो, तब आला हजरत हमको सिखा रहे थे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब वो तहरीक कह रही थी या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तब इमाम अहमद रजा हमको सिखा रहा था गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब कहने वाला ये कह रहा था कि नबी का मीलाद मनाना बिदअत है, शिर्क है, तो इमाम अहमद रजा ललकार कर कह रहा था मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, ये इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, और इन अकायद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें अंदर से बाहर से चल रही हैं। मैं ये जुमला बोल दिया करता हूँ, मगर ये ताल्ली के लिए नहीं, अना में नहीं, बल्कि तहदीसे नेमत के तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मुताला किया है। कादियानियत को डायरेक्ट बिला वास्ता उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, वहाबियत को उनकी किताबों के जरिया मैंने पढ़ा है, सुलह कुल्लियत को मैंने पढ़ा है, वहाबियत देवबंदियत को मैंने पढ़ा है, राफिजियत को मैंने पढ़ा है, तफसीलियत को मैंने पढ़ा है। इन मौज़ूआत पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया है। अल्लामा बलियावी साहब, और हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे हजरात हों जिन्होंने दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी को देखा, तकरीबन 40,000 किताबें दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जहां पर हमेशा लोगों की तहकीक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। ये मजमा जितना बैठा हुआ है उतनी बड़ी वहां की लाइब्रेरी है जिसमें ये पूरा मजमा आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा किताबें अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किताबों का मुताला करता रहता हूं। मैं आपसे तो नहीं, मगर इन तलबा से जो आज फारिग हो रहे हैं इनसे कहूंगा इकरा, ये कुरान का पहला पैगाम है। पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इल्म ही वो चीज है जिसकी बदौलत आपका ईमान, अकीदा, कल्चर, सकाफत, तहजीब और तमद्दुन सब कुछ महफूज रह सकता है। अगर आपने इल्म नहीं हासिल किया तो ना आपका अकीदा महफूज रह सकता है, ना आपका कल्चर महफूज रह सकता है। मैंने 1000 से ज्यादा इख्तिलाफी मौजू पर किताबें पढ़ी हैं, और उन किताबों के दरमियान चमकता हुआ जुमला, चमकती हुई तालीम, चमकती हुई फिक्र इमाम अहमद रजा की भी पढ़ी है। फितनों के हुजूम में या लोगों के हुजूम में कह लीजिए, इस वक्त ये पट्टी बनी हुई है ना, ये पट्टी क्यों बनी है? ताकि हुजूम के बीच में भी आने वाला आसानी से स्टेज पर आ सके। कोहरे का मौसम चल रहा है, अभी कोहरा नहीं पड़ रहा है, कुछ दिन में हो सकता है बहुत भयंकर कोहरा पड़े। जब कोहरा पड़ता है और रात में गाड़ी को चलाना पड़े, सफर करना पड़े, तो कोहरे के दरमियान आदमी कैसे जाता है, किसके सहारे आगे जाता है? तो गवर्नमेंट को आपने देखा कि उसने बीच रोड में एक रेडियम की पट्टी लगा दी है। वो पट्टी किस लिए है? ताकि रात में भी चमके, कोहरे में भी चमके, और मंजिल पर जाने वाला अपनी गाड़ी को उसी के सहारे आगे लेकर के चला जाए। अगर वो दाहिने जाएगा तो डिवाइडर से टकराएगा, और बाएं जाएगा तो गड्ढे में जाएगा, और अगर रेडियम की चमकती हुई लकीर को देखते हुए आगे बढ़ेगा तो अपने घर तक आसानी से पहुंच जाएगा। अल्लाह तुरबतों पर रहमतों नूर की बारिश फरमाए। हमारे उलमा ने फितनों के हुजूम में एक शानदार पट्टी को देखा, एक शानदार पट्टी को लगा दिया, जिसे हुजूर ग़ियास मिल्लत, शेर कालपी, मखदूम गिरामी हुजूर सैयद ग़ियासुद्दीन अहमद तिरमिज़ी मौला, हुजूर सरकार ग़ियास मिल्लत, मसलके आला हजरत नारे इन्हीं के हाथ में है। हम सब लोग दुआ में कहते हैं दे मोहम्मद के लिए
روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ کالپی شریف کی مسند عظیم کے صاحب سجدہ ہیں، وہاں سے فیض بلگرام شریف پہنچا، وہاں سے فیض مارہرہ شریف پہنچا، وہاں سے فیض بریلی شریف پہنچا، اور بریلی شریف سے فیض آپ کے اس گاؤں، کیا نام اس گاؤں کا؟ مرغیہ۔ ارے مرغوا کہہ دیا ہوتا بھائی، یہ مرغیہ کیوں کہنے لگے آپ لوگ؟ مرغوا چک میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سب فیض الحمدللہ جو کچھ عزت بچا رہے ہیں آپ لوگوں کی بلیاوی صاحب، کہہ رہے رحیم آباد نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کی عزت بچانے کا بروقت ہنر ان کو آ جاتا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اس خانقاہ کے صاحب سجادہ جو ہمارے دادا پیر تشریف فرما ہیں، تین قطب زمانہ وہاں جلوہ فرما ہیں، اور اس خانقاہ اور اس گدی کے جانشین ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فکن ہیں۔ حضور غیاث ملت آپ جلوہ زیبا کا دیدار کیجئے۔ دو جملہ میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر صبح نہیں پہنچوں گا تو حضرت بھی فرما دیں گے کہ آپ پڑھاتے کیا ہیں۔ حضرت کے صاحبزادے جمدائی میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ فکر ہوگی کہ پڑھاتے کیا ہے جب رات بھر آپ گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنوں کے ہجوم میں آپ اس کوہرے میں اگر منزل مقصود تک جانا چاہیں تو گورنمنٹ نے آپ کی گاڑی اور آپ کی جان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی ریڈیم کی لگا دی، وہ رات میں بھی چمکتی ہے، یوں ہی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فتنے بہت بھینکر ہیں، جبے میں فتنے، صافے میں فتنے، قرآن کو لے کر کے فتنہ، حدیث کا نام لے کر کے فتنہ۔ ان فتنوں سے ہم قوم کو کیسے بچائیں؟ جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے ریڈیم کی پٹی لگائی، ہمارے علماء نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی لگائی جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے عقیدے توحید کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ رسالت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت صحابہ سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت اہل بیت سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو احترام علماء و مشائخ سمجھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو تعلق باللہ کا درس دیتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب سارے دوست چھوڑ دے ساتھ تو جو محبوب ہر منزل پر کام آئے، سچا محبوب وہی ہے، لہذا اسی کو اپنے دل میں بساؤ اور یہ کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے خدا اور رسول کی سچی فرما برداری کی وہ ایک کلاس کا کامیاب انسان